तो मैं सबसे पहले अब अपने एक ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं मिस्टर लव कुश, जिनका कि ट्रांसप्लांट 2016 में हुआ था, और वो वाइस प्रेसिडेंट हैं 1.1 सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के। और ये हमारे पास 2016 में आए थे, जब इनकी किडनी में खराबी, एक बीमारी बोलते हैं जिसको आईजीए नेफ्रोपैथी, उस वजह से हुआ था। तो लव कुश, वेलकम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, आई एम वेरी गुड, बहुत अच्छा हूँ। Thanks for coming, taking your time, and you are doing very well. I congratulate you. तो I just want to ask you कि जब तुम पहली बार मेदांता आए थे या यहाँ ट्रांसप्लांट के उससे इरादे से आए, तो उस समय तुम्हारे मन में क्या था, क्या बातें थी और क्या डाउट्स थे और क्या एक्सपेक्टेशन थी, एंड उसके बाद हाउ डिड यू फील? टेल योर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड योर एडवाइस फॉर अदर पेशेंट। Sure. Thank you. I'm very glad to be here, डॉक्टर साहब। अब जब मैं सोचता हूँ 2016 के बारे में, it looks like a different lifetime. I got operated on the 2nd of November 2016. Weeks before that, I was in peak discomfort. Everything started melting down in front of my own eyes. Everything that I was very sure of, my physical strength, cognitive ability, and everything that we take granted for, started fading in front of my own eyes. Everything started becoming difficult. I was very fortunate, though, very fortunate to receive excellent care initially by Dr. Pankaj Hans and Patna, and he referred me to you at Medanta. When I saw you first in the month of October 2016, आपसे बात हुई, आपने बताया कि क्या क्या टेस्ट करने हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी करने। द थिंग विच आई लाइक वेरी मच इज दैट जब मैं आपके पास आया था तो मेरे पास पूरा किताब था। आई रिमेम्बर आई हैड 650 पेजेस ऑफ रिपोर्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम all over the country. You looked at them very carefully, studied all of them. You did not just look at some of the initial pages and came to your conclusion. You took your time, you went through the entire thing, you heard my story. The thing that gave me hope was that all the doctors that I've had the good fortune to share my condition with understood that the emotional load of the disability, if I may say so, or the discomfort was pretty much more than the clinical discomfort that I was facing. Because symptomatically, I was receiving some aid. So if I had nausea, there was a medicine for it. If I had pain, there was a medicine for it. अगर सोने में दिक्कत हो रही थी तो उसके लिए भी दवाई थी। लेकिन जो एक इमोशनल लोड होता है कि अब इट इज ऑल गोइंग टू एंड, कल क्या होगा पता नहीं, उसको आपने समझा, एंड यू काम माई सेंसेस डाउन. Me and my mother, we visited you. My mother, of course, was much more worried than I was. Yeah, I remember. And और तो उनके बहुत सवाल थे, और बड़े वाजिब सवाल थे। जब मैं सब सोचता हूँ तो लगता है कि अगर कभी ईश्वर ना करे मैं उनकी जगह पे हूँ तो शायद मेरे भी सवाल वैसे होंगे. इनफैक्ट इफ आई वर टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी मोर फिनिकी देन शी वाज. तो आपने सुना, सब कुछ बताया, सारे डिटेल्स हुए, सारे टेस्ट फिर वापस मिले. उसके बाद द वे यू कंक्लूडेड दैट वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर गिविंग अ न्यू transplant, a new organ to my body is the only way forward. I looked at it, we got it done. I will just say that on 2nd of November 2016, I went under the knife, and on 15th of February 2017, I resumed my work. तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई टेस्टिमनी नहीं हो सकता. For the fact that how fast the recovery was, how accurate and precise the diagnosis, the prognosis, and the treatment that followed. उसके बाद का जीवन अगर मैं अभी कहूँ आपसे तो बहुत comfortable है. I have to be honest with you. But having said that, yes, life has changed considerably. It is not what it used to be before. So before my transplant, I used to be, I think I should admit, I was very irresponsible, erratic. I would not think very much, do whatever I wanted to do, go wherever I wanted to do. But अब वो सब नहीं है. अब जीवन शैली में बहुत बदलाव किया है. All the prescribed prescriptions, I have tried designing a routine for myself around it. जो भी डूज और डोंट्स हैं उसके इर्द गिर्द ही सब कुछ तय किया है. सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब कुछ भी करने से पहले द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई सब्जेक्ट माई सेल्फ टू इज इट सेफ फॉर मी. उसको सोचता हूँ, समझता हूँ. अगर मुझे खुद पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपके संज्ञान में लाता हूँ, आपकी एडवाइस लेता हूँ, समझता हूँ. जब मुझे पूरे तौर पे समझ आ जाता है कि हाँ ये नई चीज करना मेरे लिए सेफ है, तभी मैं वो नई चीज करता हूँ.
The other thing is, I have understood and respect the fact that life from here on for me is going to be a life of moderation. तो बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना है, ओवर द बोर्ड नहीं जाना है किसी चीज को लेके। बट उसके अलावा ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मैं किसी को ना बताऊं खुद से कि मुझे तकलीफ है, तो शायद किसी को पता भी ना लगे। तो जीवन इतना नॉर्मल हो गया है। ऑल थैंक्स टू यू, ऑल थैंक्स टू योर स्टाफ एंड state of the art infrastructure at Medanta. Thank you very much for giving me a lease of life. And yes, I cannot but mention my sister, Jyoti, little kid, a couple of years smaller to me. She gave me second lease of life, और सर्जरी के 8 दिन बाद से उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। 1 महीने बाद उसके MA का फाइनल पेपर था। तो बिल्कुल 1 महीने बाद we traveled to Patna. In sense, I of course did not travel. I was in isolation for 3 months. But she traveled with my mother. She gave her examination और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हुआ, यह संभव था अगर आपकी मेडिकल प्रोग्रेस, आपकी जो टीम है उसकी कॉम्पिटेंसी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ समय पे हुआ, इसलिए हो गया। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड आई कैन नॉट थैंक यू इनफ डॉक्टर साहब फॉर दिस। Thank you, Love Kush, for this excellent this thing. But I just want to share that किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेसफुल होना केवल डॉक्टर और उसके ऊपर, इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट है कि भाई जिनका ट्रांसप्लांट हो रहा है वो और उसकी फैमिली इसको कैसे लेते हैं, कि ये समझना ज़रूरी है। जैसे बताया कि आपको अपनी दवाइयाँ टाइम से लेनी है, अपना टेस्ट टाइम पे कराने हैं, एंड यू हैव टू आस्क कि आप जो कर रहे हैं वो सब ठीक है कि नहीं, बिकॉज ये अगर कोई डाउट है तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये इशू सवाल कई बार आता है लोगों के दिमाग में कि डोनर को कोई खतरा तो नहीं होगा। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि भाई डोनर, एक तो किडनी कौन दे सकता है और किडनी देने वाले को कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो लेट मी टेल यू कि जिनका हम किडनी लेते हैं, कई सारे लोग हैं जो उनके सारे पहले टेस्ट किए जाते हैं, और अगर टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल है और दोनों किडनी एकदम ठीक काम कर रही है तभी किसी का किडनी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी का भी किडनी, अगर इवन हमारे पास कई बार ऐसे लोग आते हैं जो जिनके की डोनर उतने फिट नहीं होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनको नहीं लेते इवन इफ दे इंसिस्ट। तो डोनर सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, और डोनर यूजली माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल से ऊपर उम्र उसकी होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं है, 70 या 75 साल का आदमी भी किडनी दे सकता है अगर उसकी ओवरऑल हेल्थ ठीक है, उसकी दोनों किडनी उसके एज के हिसाब से ठीक काम कर रही हो। तो अपर एज लिमिट ऐसी कोई फिक्स नहीं है। ऑब्वियसली 75 साल के ऊपर फिर किडनी का फंक्शन इतना अच्छा नहीं रहता कि आप किसी को लगाओगे तो उसमें काम करेगा, बट हमने 75 साल तक के लोगों की किडनी ली है जो अदरवाइज हेल्दी है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है कि भाई डोनर को आज हमने किसी का टेस्ट किया तो उसको प्रॉब्लम आगे चल के डोनर को, जैसे किसी भी नॉर्मल पर्सन को हो सकती है, डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या और हार्ट की प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, वो उसको भी हो सकती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आज अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चल के 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं हो सकती। तो डोनर का भी ईयरली, मैं अपने जितने भी डोनर्स होते हैं उनको ईयरली वी टेस्ट देम, और उनका अगर ब्लड प्रेशर है डेवलप हुआ या शुगर डेवलप हुआ या कुछ और बीमारी चीज डेवलप हुई तो वी रूटीनली कीप ऑन ट्रीटिंग देम और उनको ठीक रखा जाए। तो यूजली ऐसे में डोनर को परेशानी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो लव कुश, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क मी बिफोर वी कॉल समवन एल्स? जी सर, 2 सवाल हैं मेरे जिनके बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ। पहला ये कि जिन लोगों ने जो रिसिपिएंट है जैसे कि मैं हूँ या फिर जो लोग डोनर है जैसे मेरी सिस्टर है, उनके लिए क्या वैक्सीनेशंस इम्पोर्टेंट हैं और किन फ्रीक्वेंसीज पे आने चाहिए, पहला ये। दूसरा कि जैसे आपने बताया कि सब कुछ ठीक होने के लिए ये आवश्यक है कि जिन्होंने भी जो भी इस प्रोसीजर से गुजरे हैं वो अपनी दवाइयाँ समय पे लें, अपनी दिनचर्या ठीक रखें, लाइफस्टाइल कंट्रोल में रखें। आर वी लुकिंग एट अ फ्यूचर वेयर some of us will not be required to tie ourselves down with the clock? जैसे मान लीजिए एक इंजेक्शन ले लिया और 6 महीने दवाई लेने की जरूरत नहीं है, क्या एक ऐसा भविष्य हम देख रहे हैं? उस क्षेत्र में क्या कोई शोध या कोई रिसर्च चल रहा है?
ठीक है, यही तो मेरे सो दो सवाल है सर। वेरी गुड क्वेश्चन। तो हाँ। लव कुश, तो पहली चीज वैक्सीनेशन। तो जो डोनर है उनके जो वैक्सीनेशन है वो नॉर्मल, जैसे हमारे यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो होते हैं सभी लोगों के, जो बचपन में वैक्सीनेशन होते हैं, और फिर जैसे अब हमारे यहाँ तो फ्लू उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बाहर लोग फ्लू का रेगुलर वैक्सीनेशन लेते हैं यूजली। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हो, जैसे ट्रांसप्लांट के बाद रेसिपिएंट है, उनके लिए फ्लू वैक्सीनेशन है जो ईयरली ले सकते हैं। दूसरा है जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन है, वो जरूर सबको लेना चाहिए। तो जो जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ होता है उनको वैक्सीनेशन का डोज है वो ज़्यादा होता है। तीसरा है कि एक निमोनिया का वैक्सीनेशन है जो कि लेना चाहिए। तो ये 3 तरह के वैक्सीनेशन है। बाकी तो जो रूटीन ट्रांसप्लांट के बाद में आप लाइव वैक्सीन नहीं ले सकते। लाइव वैक्सीन जैसे कि ये पोलियो का जो ओरल वैक्सीन है, या फिर एमएमआर वैक्सीन होता है, तो वो वैक्सीन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट या जिनको इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ चलती हैं वो वाले वैक्सीन नहीं ले सकते। बट बाकी जो नॉर्मली रिकमेंडेड वैक्सीन्स हैं, और स्पेशली ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट को निमोनिया, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा, ये 3 वैक्सीन्स आप रेगुलरली प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग, जो कि रिक्वायर्ड है। फिर डिपेंड करता है रीज़न के ऊपर कि किसी रीज़न में अगर ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अलग से वैक्सीन लेना है, तो दैट विल डिपेंड ऑन दैट। योर सेकेंड क्वेश्चन की कोई ऐसा इंजेक्शन है, देखिए अभी तक तो ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जिसको कि 6 महीने पे लें और दवाइयाँ ना लेनी पड़े। एक इंजेक्शन है बिलाटासेप्ट, जिसको कि डिस्टेक्रोलिमस दवा की जगह पे यूज़ करते हैं, बट वो भी मंथली इंजेक्शन देना पड़ता है, और वो इंजेक्शन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप उस इंजेक्शन को भी लेते हैं तो अभी आपको बाकी 2 दवाइयाँ वो लेनी ही पड़ेंगी, बाकी और दवाइयाँ। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर भी जहाँ पे ये इंजेक्शन अवेलेबल है, केवल 2 या 3% या 5% लोग ही ऐसा होते हैं जो उस इंजेक्शन को लेते हैं। उस इंजेक्शन का नुकसान ये है कि अगर आपने अपना डोज मिस कर दिया तो प्रॉब्लम है, बिकॉज वो फिर मंथली लगता है। और अगर हम टर्म्स में देखें कि भी उसका कोई और ऐसा फ़ायदा है कि वो हम जो दवाई नॉर्मल टेक्रोलिमस यूज़ करते हैं उससे बेहतर है, तो वो ऐसा नहीं है। उसका भी जो आउटकम है वो सेम ही है। फ्यूचर में अभी चल रहा है कि कुछ आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बना सकते हैं हम बायो इंजीनियरिंग करके, और उसको कि जैसे कुछ, तो वो अभी अभी नहीं है। या फिर हम एनिमल्स के ऑर्गन ले सकते हैं, उसमें अलग अपने इश्यूज रहते हैं, तो वो अभी चीज़ है जो अभी बहुत क्लियर नहीं है। तो thank you Love Kush. Thank you, sir. Thank you. So again I'll just ask this question, Love Kush, ki how's your life after transplant and what is the cost of drug, in short? Life is good. Everything is normal. I like to keep that in the notice of everything that I do. That it's all okay. It's all normal. I have to be hygienic, like everybody else has to be. Whatever precautions that I had to make a part of my routine when I had recently undergone the routine have now become part of life. So it's all okay. The cost of meds, I think about 6,000 per month. I think that is what it comes to.